Hello everyone and welcome you back in the next video of the series View Under the Microscope. In the previous video we have discussed about the epithelial cells, and now in this video we will be discussing about the glands, and in the glands I'll be talking about the classification and what is a gland and the overview of the slides, how to identify them and what would you make in your histology slides. So here I am, Supriya Gupta, third professional MBBS part 1 from Calcutta Medical College, also known as Medical College Kolkata. So let's get started. First of all, glands क्या है? Glands, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है. Glands are nothing but एक epithelial layer which is growing inside, ठीक है, in the lamina propria. They will be proliferating and then they will become specialized to perform secretory function. Okay, and these entities are actually known as glands. So glands are the epithelial cells of the tissue which proliferate into connective tissue and they become specialized to perform the secretory function. Okay. Next, glands are glands is a very complex topic, so I would like you to concentrate here. Okay, just concentrate on the classification. So, first of all, so according to glands have many classifications. Okay, they are divided according to various subtypes. So first of all, we will talk about the division according to the origin. Origin के हिसाब से 3 origin है हमारे बॉडी में हर चीज की, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल. ओके, तो अगर एक्टोडर्मल origin के ग्लैंड्स आते हैं तो एग्जाम्पल उसके होंगे स्किन के ग्लैंड्स लाइक स्वेट, सेबेशियस, लैक्राइमल यहाँ होता है. ओके, नाउ द पिट्यूटरी ग्लैंड, द मैमरी ग्लैंड. ओके, नाउ मेसोडर्म से आते हैं सलाइवरी ग्लैंड एंड द सुप्रारेनल ग्लैंड. नाउ फ्रॉम द एंडोडर्म, GIT, thymus, thyroid and parathyroid, they're very easy to remember, the GIT glands, but except salivary, क्योंकि salivary हमारा mesoderm में आ चुका है. Okay, next, according to the development and presence of ducts. So you know ना कि जो हमारे glands होते हैं, they are divided into exocrine gland and endocrine gland. ठीक है, exocrine gland में क्या होता है कि when the cells are dividing into the connective tissue, there will be a proximal part, there will be a distal part. जिस ग्लैंड का ये proximal part रह गया वो बन जाते हैं exocrine gland having ducts that will be formed by this proximal part. and जिस gland का ये proximal part हमारा destroy हो गया and they are just left with this distal part, उसका हमारा duct नहीं होगा, they will be ductless and hence they will be known as endocrine glands. So exocrine glands secrete secretions which are known as enzymes, and endocrine glands release hormones directly into the bloodstream. Now, देखो यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि ग्लैंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है. तो दिस इज द फ्लो चार्ट विल बी, देखो आप डायग्राम के हिसाब से अगर देखोगे, दिस इज द एपिथेलियल सेल्स, ये हमारा लैमिना प्रोप्राया था. एपिथेलियल सेल्स की जो बेसल लेयर थे वो लैमिना प्रोप्राया में डिवाइड होना शुरू किए एंड दे फॉर्म्ड so big collection of cells. Okay, now अब ये जो collection of cells है ये दो तरीके से जा सकता है. either it is forming the proximal and the distal part, or the proximal part is getting degenerated and the distal part is left. Okay, this is the formation of endocrine and the exocrine glands. Here also you can see this is the normal layer. Now they will be dividing here and they will form like this, and the gland will be detached and the proximal part will be destroyed. So this is the exocrine gland, this is the endocrine gland. Okay, so how to draw the exocrine gland and endocrine gland. Exocrine gland तो बहुत easy है क्योंकि उसका proximal part and distal part will be there. Distal part will form the secretory part and the proximal part will form the duct. And the endocrine gland में हमारा जो proximal part है गायब है ही नहीं, तो distal part will only form the gland, and because there is no proximal part, there is no duct, hence the secretions will be directly secreted into the bloodstream. Okay, so
Now we have seen कि endocrine gland actually होता क्या है. So come into the classification. Okay, endocrine gland is further divided into either they can be cord or clump-like, or they can be follicular, or they can be reticular type. Okay, तो जो cord and clump-like होते हैं, you can see here, this is a cord or a clump. Okay, तो यहाँ पे क्या है कि ये the gland will be in the form of clumps which will be surrounded by the sinusoids or the blood vessels. Okay, तो इसका जो example है वो है zona fasciculata, which is a cord like, and zona glomerulosa, which is clump like, and these two are found in the kidney. Okay, now follicles type में the cells will be forming a round follicle, like here you can see there's a round follicle which is surrounded by the blood vessels. These are the blood vessels. Okay, तो अब जितने भी फॉलिकल्स आपको याद हैं हमारे बॉडी में, लाइक थायराइड फॉलिकल, यू हैव ओवेरियन फॉलिकल. ओके, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं. नाउ रेटिकुलर टाइप, यहाँ पे जो सेल्स होंगे दे, आई डोंट हैव द पिक्चर हियर, दे विल बी अरेंज्ड लाइक ब्रांचिंग पैटर्न, एंड बीच बीच में साइनोसॉइड्स होंगे उसके फॉर द ब्लड वेसल्स. एंड इसके एग्जांपल है जोना रेटिकुलरिस, अगेन फ्रॉम द किडनी. तो जब हम लोगों ने क्लासिफाई किया था ग्लैंड को इनटू द एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, तो एंडोक्राइन का बेसिकली इतना ही पार्ट है. अब से जो भी स्टार्ट होगा, they are all part of the exocrine classification. Okay, exocrine gland have a long classification, and they are classified into various subgroups depending upon various topics. So let's see. First of all, the exocrine gland can be divided into unicellular and multicellular according to the number of cells. तो unicellular में नाम से पता चल रहा है एक सेल, multicellular में number of cells will be more than one. Okay, तो unicellular का एग्जाम्पल होगा हमारा गॉबलेट सेल्स, जो कि एक्सोसाइटोसिस से अपना सिक्रीशन पोर करेगा. एंड यू नो गॉबलेट सेल्स फेवरेट सेल्स, तो वो HNE स्टेन नहीं लेते हैं एंड दे विल बी पेल. एंड मल्टीसेलुलर जो सेल्स ग्लैंड होंगे हमारे पास, all the other gland which will forming diverticula and divided into duct and part, secretory part, that we have seen a duct and a secretory part, they were all multicellular. Okay, those are all multicellular glands. Example कोई भी gland आप उठा के ले लो, like parotid, lacrimal, any. ठीक है, तो how to draw a multicellular या unicellular gland? Okay, see, these are the non-secreting cells. और ये जो यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है ना, ये बेसिकली नॉन सिक्रेटिंग सेल्स के बीच में ही होता है हमेशा. तो दिस इज अ गॉबलेट सेल, यू सी देयर इज नो स्टेनिंग हेयर, कोई पिंक कलर का स्टेन नहीं है, इट इज कम्प्लीटली एम्प्टी. तो दिस इज द यूनिसेलुलर गॉबलेट सेल. एंड यू कैन सी हेयर नंबर ऑफ सेल्स फॉर्मिंग अ एक्सोक्रीन ग्लैंड. तो दिस इज अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड. नाउ अकॉर्डिंग टू द ब्रांचिंग पैटर्न, तो ब्रांचिंग क्या होती है कि हमारा ग्लैंड ऐसे करके नीचे आया है. नाउ दे कैन फॉर्म डिफरेंट ब्रांचेस. इट कैन ब्रांच लाइक दिस, इट कैन ब्रांच लाइक दिस. तो अलग अलग तरीके से ये ब्रांच हो सकता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ब्रांचिंग पैटर्न, आइदर इट कैन बी अ सिंपल और इट कैन बी कंपाउंड. सिंपल हैज नो ब्रांच. ठीक है, इट इज कंप्लीटली अनब्रांच्ड. जो अभी तक हम लोग देखते आए हैं एक्सोक्रीन का डायग्राम, दैट इज अनब्रांच्ड. तो दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सिंपल. एंड जहां पे भी ब्रांचिंग आपको दिखेगी, एक डक्ट है उससे दो अलग अलग डक्ट है, वो सारे आ रहे हैं, तो वो सारे होगा हमारे पास कंपाउंड ग्लैंड का एग्जाम्पल्स. ओके, तो सिंपल ग्लैंड में सिक्रीशन आर पोर्ड इन अ सिंगल डक्ट. कंपाउंड ग्लैंड में देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि ड्रेन करेंगे अपने डक्ट में. those duct will unite, they will form a larger or a main duct, and then फिर वो epithelial surface पे आएगा. So simple exocrine gland can be further divided into alveolar or tubular. Alveolar is also known as acinar. Okay, तो जो हमारा सिंपल एक्सोक्रीन ग्लैंड का जो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्वियोलर टाइप. ठीक है, एल्वियोलर क्या है? एल्वियोलर और एसिनर में क्या होता है, द ग्लैंड्स जो होंगे हमारे पास फ्लास्क या फिर ओवल शेप या राउंड शेप के होंगे. ठीक है, द सिक्रेटरी यूनिट, दैट इज द डिस्टल यूनिट, विल बी oval shaped, round shaped or flask shaped, and they can be further divided into simple alveolar, simple branched alveolar. Okay, simple alveolar का example है mucus gland of penile urethra.
मोस्टली ये जो सिंपल एल्व्यूलर होते हैं वो हमारे एडल्ट बॉडी में नहीं मिलते हैं. दे आर कम्प्लीटली डेवलपमेंटल एंड वो बाद में जाके डेवलप हो जाते हैं सिंपल ब्रांच एल्व्यूलर में. ओके लाइक और सिंपल ब्रांच एल्व्यूलर के एग्जांपल्स है हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड, मीबोमियन ग्लैंड ऑफ द आईलिड. ओके ओके हाउ टू ड्रॉ दिस. तो सबसे पहले आपको देखना है कि सिंपल एल्व्यूलर वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपल एल्व्यूलर एंड सिंपल ब्रांच एल्व्यूलर. तो सिंपल एल्व्यूलर का जो डायग्राम होगा, यू विल ड्रॉ अ सिंगल, सी हियर एक डक्ट है, ये हमारा डक्टल पार्ट है एंड दिस इज द डिस्टल और द ग्लैंडुलर पार्ट. दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट, दिस इज द डिस्टल पार्ट, दिस इज द डक्ट पार्ट, दिस इज द ग्लैंड पार्ट. तो ये जो ग्लैंड है, ग्लैंड का आप शेप देखो, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, फ्लास्क शेप, ओवल शेप, राउंड शेप. तो ये क्या है, राउंड शेप है, हेंस इट इज सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड. ओके नाउ इसका एग्जांपल है कैवर्नस यूरेथ्रा. कैवर्नस यूरेथ्रा में हम लोग को यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो होते हैं वो इसका एग्जांपल होते हैं. ओके नाउ आई हैव एडेड दिस कॉम्प्लेक्स डायग्राम हेयर सो दैट यू कैन रिमेम्बर इट कि इसका एग्जांपल हम लोगों ने कहाँ पे लिया था. ओके एंड सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर में क्या है कि देखो ब्रांचिंग यहाँ पे डक्ट्स की नहीं है. अगर डक्ट की ब्रांचिंग होती तो हम उसको कंपाउंड बोलते, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग डक्ट की नहीं है, यहाँ पे ब्रांचिंग है तो इस ग्लैंड की. दिस ग्लैंड इज ब्रांच्ड, नॉट द डक्ट. इफ डक्ट वाज ब्रांच्ड then it would be known as compound, but it is simple here. Okay तो इसका जो एग्जाम्पल है, दिस इज आईलिड का मीबोमियन ग्लैंड. ओके so see here, this is the meibomian gland, okay, also known as the tarsal gland. These are the meibomian glands. Okay these are the meibomian gland. उसका आप पैटर्न देखो जरा, सारे के सारे डक्ट जितने भी उसके ग्लैंड पार्ट है वो सारे के सारे ब्रांच्ड है, इसीलिए these are the simple branched alveolar. Okay coming further, the next division was simple exocrine gland was divided into alveolar and tubular. ओके तो एल्वियोलर हम लोगों ने पढ़ लिया. दिस का लेट्स कम इनटू ट्यूबुलर पार्ट. ट्यूबुलर पार्ट में क्या होगा कि दी सिक्रेटरी यूनिट विल बी ट्यूबुलर इन शेप, नाम से पता चल रहा है. देन इसका भी फर्दर डिवाइड है, जैसे सिंपल ट्यूबुलर, सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर, सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर. ओके तो सिंपल ट्यूबुलर में जैसे कि हमारे किप्स ऑफ लोबर कोहन है, हमारे इंटेस्टाइन ग्लैंड्स. देन सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर में क्या होता है, एग्जाम्पल इज मेरोक्राइन सेवेट ग्लैंड. एंड सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर में क्या होता है, हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है. ओके नाउ हाउ टू ड्रॉ दिस सिंपल ट्यूबुलर. सिंपल ट्यूबुलर में क्या होगा, दिस सी ये हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट, ये हमारा डिस्टल पार्ट. डिस्टल पार्ट इज ट्यूब लाइक. ओके एंड इसके जो एग्जाम्पल होंगे इंटेस्टिनल ग्लैंड्स. ओके इंटेस्टिनल ग्लैंड्स में ये जो ग्लैंड्स हैं, बेसिकली आपको जब स्लाइड मिलेगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो ट्यूबुलर है या क्या है. तो इन अ कंपाउंड स्लाइड यू वोंट फाइंड इट. आई एम जस्ट एडिंग हेयर सो दैट यू कैन रिमेम्बर इट व्हेन यू रिकॉल इट कि इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया था. ओके द नेक्स्ट इज सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर. सी हियर ये प्रॉक्सिमल पार्ट तो था लेकिन ये कॉइल्ड है, ये पूरा कॉइलिंग दिख रहा है, ऐसे आया देन ऐसे करके एंड इट इज कंप्लीटली कॉइल्ड लाइक दिस, है ना. तो ये कॉइल्ड है, सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर. और इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने कहा था स्किन में. स्किन में हमारे पास है स्वेट ग्लैंड. ओके तो वी गिव एन एग्जांपल ऑफ मेरोक्राइन स्वेट ग्लैंड. ओके नाउ कमिंग हियर, द नेक्स्ट विल बी सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर. सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर में भी ब्रांचिंग किस में होगी, ग्लैंड्स में ब्रांचिंग होगी, डक्ट्स में नहीं. दे आर ऑल पोरिंग द सिक्रीशन इनटू द सेम डक्ट, दे डू नॉट हैव देयर ओन डक्ट. ओके नाउ इसके एग्जांपल हम लोगों ने लिए थे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. नेक्स्ट पिक्चर मेक इट क्लियर कि ये जो ग्लैंड्स है हमारे पास, these are the tubular branched. Okay these are branched tubular glands. See branching. Okay
दिस आर ब्रांचिंग, है ना। नाउ कमिंग टू द, अब हम आते हैं, हमारा सिंपल ग्लैंड यहाँ खत्म हो गया. सो लेट्स रिवाइज. Simple gland was having no branches. They were further divided into alveolar and tubular. Alveolar was further divided into simple alveolar and branch alveolar, and the tubular was further divided into simple tubular, simple coiled tubular, simple branch tubular. Now coming to the compound exocrine glands. Okay, compound exocrine glands का बस तीन ही classification है. Either सिंपल सॉरी कंपाउंड एल्व्यूलर होगा, या कंपाउंड ट्यूब्यूलर होगा, या फिर कंपाउंड ट्यूब्यूएल्व्यूलर होगा. इसका एग्जांपल जो कंपाउंड एल्व्यूलर है उसका एग्जांपल है मेमरी ग्लैंड. कंपाउंड ट्यूब्यूलर का है ब्रनर्स ग्लैंड इन द डियोडेनम, bulbourethral gland of the male, testes of the male, and compound tubuloalveolar is submandibular salivary gland, respiratory passage में जो glands हैं, and the pancreas. Okay, so how to make them? Okay, तो कंपाउंड में हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी उसमें कंपाउंड एल्व्यूलर था, कंपाउंड ट्यूब्यूलर था, कंपाउंड ट्यूबोएल्व्यूलर था. तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम देखेंगे कंपाउंड एल्व्यूलर की. तो कंपाउंड एल्व्यूलर, नाउ सी हियर कितना डिफरेंस है यहाँ पे कि एल्व्यूलर सबसे पहले क्या मतलब होता है. एल्व्यूलर का मतलब होता है द ग्लैंड्स विल बी alveoli in shape. Okay, like flask shape, राउंड शेप या फिर ओवल शेप. ग्लैंड्स तो हमारे शेप में हमें समझ में आ गया कि एल्व्यूलर है, बट सिंपल है या कंपाउंड है उसको देखने के लिए जस्ट फॉलो द डक्ट. यू सी, हर एक ग्लैंड का अपना एक डक्ट है. यहाँ पे अपना एक डक्ट का मतलब है दे हैव देयर ओन डक्ट, एंड इन डक्ट के बाद एक कॉमन डक्ट है. तो यहाँ पे जो secretion होगा, first of all these group of cells will be pouring their secretion into their own duct, and from there all the ducts will be pouring their secretion into this common duct, and from the common duct the secretion will go out of the surface epithelium. Okay, तो इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है तुम्हारे पास मेमरी ग्लैंड. ओके, मेमरी ग्लैंड में जो हमारे पास ये जो alveoli है, alveoles, they are all example of the compound alveolar. Now compound tubular में देखो, again the glands are tubular in shape. See, tube like shape, but they have their own duct, and these duct are forming a common duct and pouring their secretion into the surface epithelium. इसका example है duodenum का Brunner's gland. Okay, these are the Brunner's gland. Next, okay, see, compound tuboalveolar, इसमें पहले alveoli शेप के ग्लैंड्स थे, वो बन गए ट्यूबुलर शेप के ग्लैंड. तो ये जो कंप्लीट ग्लैंड है वो ट्यूबोएल्वुलर हो गया. कंपाउंड क्यों? हैविंग their own duct which is secreting into the main duct and then from there into the surface. इसके एग्जाम्पल है पैनक्रियाज. पेनक्रियाटिक जो एसिनाई होती है ये हमारे कंपाउंड ट्यूबोएल्वुलर होता है. ओके, नाउ एक क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया था एक्सोक्रीन ग्लैंड. एक्सोक्रीन ग्लैंड का फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज अकॉर्डिंग टू द सेल्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर. ओके, then we divided them into according to the branching pattern into the simple and compound. तो ये दो क्लासिफिकेशन हो गए. तीसरा क्लासिफिकेशन है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सिक्रीशन. ठीक है, टाइप ऑफ सिक्रीशन कैन बी म्यूकस, सीरस और मिक्स्ड सेरोम्यूकस. ओके, फर्स्ट म्यूकस. म्यूकस में क्या होगा? The cells will be cuboidal or columnar. Okay, the nucleus will be flat and they will be present in the base because इतने secretions इसमें भर जाते हैं कि they will push the nucleus towards the base. The lumen will be large in size and they will secrete mucin because नाम से ही पता चल रहा है mucus gland है. And because mucin is a mucopolysaccharide, they will not take the H&E stain and hence they will be pale. And the special stain from where they can be stained is
PAS, periodic acid skiff, and इसका एग्जाम्पल है sublingual salivary gland. Now you see here, this is the diagram of mucus acini. Mucus acini में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, recall it. सबसे पहले these are cuboidal. वैसे तो ये cuboidal shape होगा, गलती से यहाँ पे ये पिरामिडल है पता नहीं क्यों, बट ये cuboidal या फिर कोलमनर होगा, ठीक है. एंड सी कितना बड़ा ल्यूमन है, ल्यूमन साइज देखो कितना बड़ा है. न्यूक्लियस इज फ्लैटेंड एंड दे आर एट दी पेरीफ्री, है ना, एट दी बेस पे है. एंड ये जो खाली खाली जो स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पे खाली स्पेस है, यहाँ पे खाली स्पेस है. एक सेकेंड दिखाते हैं. ये जो खाली स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, ये खाली स्पेस, दे आर फिल्ड विथ म्यूसिन एंड हेंस दे हैवंट टेकन एनी स्टेन. ओके, नाउ नेक्स्ट. तो आप आइडेंटिफाई, तो आप माहिर हो गए होगे. दिस इज ग्लैंड. ग्लैंड है हमारे पास, बेस पे हमारे पास न्यूक्लियस है, ऊपर पूरा खाली है, नॉन टेकन स्टेन्स, एंड ल्यूमन हमारा कितना बड़ा है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, एंड दिस यू विल आइडेंटिफाई दिस एज अ म्यूकस एसिनी. ओके, कमिंग टू सेरस. सेरस में क्या होता है कि they will secrete watery fluid and hence the name cirrus. Okay, the cells will be pyramidal in shape. Mucus was cuboidal, columnar, ये pyramidal है. न्यूक्लियस हमारा सेंट्रली प्लेस्ड है, स्फेरिकल है, वहां पे बेस पे थे, फ्लैटेंड थे. सिक्रीशन विल बी वाटरी, दैट इज प्रोटीनेशियस, वहां पे म्यूकोपॉलीसेकेराइड था, म्यूसिन था. ल्यूमन विल बी स्मॉल, देयर ल्यूमन वाज लार्ज. यहाँ पर एपिकल इओसिनोफिलिया होता है जो कि वहां पे नहीं होता. द साइटोप्लाज्म इतना ग्रैनुलर होता है कि दे आर स्टेन्ड ब्लूइश समटाइम्स इन द H&E स्टेन, एंड इसका एग्जांपल है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड. ओके, सो हाउ टू मेक इट. सी हियर, आपको दिख रहा है, ये तो बिल्कुल ही पिरामिड है. देखो, पिरामिडल शेप, न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड दे आर राउंड. एंड ये दिख रहा है इतना सारा, ये जो यहाँ इतना सारा ग्रैन्यूल्स है इसमें. ओके, एंड यहाँ पे देखो आप, एपेक्स ऑफ द सेल्स में, दिस इज एपिकल इओसिनोफिलिया. द ल्यूमन कितना छोटा है यहाँ पे, ल्यूमन इज स्मॉल. ओके, आइडेंटिफाई द ग्लैंड. सबसे पहले तो पिरामिडल इन शेप है, इतना अच्छा. द न्यूक्लियस इज राउंड and it is in the center. Okay, the lumen is so small. Here you can see the cytoplasm is stained blue and इतना सारा यहाँ पे granules है, cytoplasmic granules can be seen. यहाँ पे देखो आप ऊपर में, you can see apical eosinophilia also. So the last one from here will be seromucus. Seromucus means जो gland है उसमें mucus acini भी होगा, cirrus acini भी होगा, and they will be in the same acini. Okay, तो इसको हम लोग सीरस डेमिन्यूल्स भी कहते हैं. इसका जो सबसे पहला जो ग्लैंड होगा, that will be mucus gland. Okay, this is the mucus gland, mucus gland, mucus gland. and इसके ऊपर एक कैपिंग होगी, वो होगी हमारे पास सीरस ग्लैंड की. Okay, this is the सीरस डेमिन्यूल. ओके, तो फंक्शन क्या होता है कि अगर हम म्यूकस में वाटरी सिक्रीशन मिलाएं तो क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी, उसकी थिकनेस, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, है ना. तो इसका फंक्शन यही है कि इट डिक्रीजेस द कंसिस्टेंसी ऑफ द म्यूकस. इसका एग्जांपल है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड. सो म्यूसिन एसिनी, वहां पे एग्जांपल था सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड. द सीरस एसिनी एग्जांपल वाज पैरोटिड ग्लैंड. Here seromucus, which is the mixed example, is submandibular salivary gland. Okay, so how to identify this? अब तो आप लोग एकदम मस्त जंप कर रहे होगे इमेज पे. ये देखो, इसने स्टेन नहीं लिया है, मतलब म्यूकस, ये म्यूकस है, एंड दिस इज द सीरस पार्ट. एंड सी कैपिंग की तरह है ना, ये कंप्लीटली एक डेमिन्यूल है. So this is seromucus gland. Now
The last division is according to the mode of secretion. Mode of secretion के हिसाब से the cell is further divided into merocrine, apocrine, holocrine. Okay? जो merocrine gland होंगे वो लोग क्या करते हैं ना कि they will form cytoplasmic bodies which will contain the secretion, and then they will throw out the secretion by the process of exocytosis. Okay? The cell will remain intact. Cell को कुछ नहीं होगा. इसका example है sweat, salivary gland. Okay? See here. This is the normal cell. बहुत सारे अंदर में inclusion bodies हैं. These inclusion bodies are coming to the surface, and these surface में आके they are doing the exocytosis and pouring their secretion out. So this is an example of merocrine gland. Next, apocrine gland. Apocrine का मतलब होता है apex. Okay, just remember it, apex. The apical part will be pinched off. Okay, see here, ये normal है. यहाँ पे क्या होता है कि these will come here apical part में. The apical part along with the secretory granules they will pinch off. ये हमारा part of the cell and this is the secretory part. Okay, तो ये हो गया हमारा apical portion will be pinched off carrying the secretion. Example, mammary gland. Mammary gland is modified sweat gland. Okay, atypical sweat gland. Glands of the axilla and pubis. Remember it like MAP, map. Mammary gland, atypical salivary gland, and axilla, P for pubis. Okay. Now, holocrine. Holocrine gland का नाम में देखो, whole. Okay, whole means complete. Complete cell is getting disintegrated. Okay. तो holocrine gland में क्या होगा, the whole cell will get disintegrate and they will release their secretion completely. Okay, but ये तो है ना कि अगर कोई सेल लॉस हो रहा है तो बॉडी को उसको रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा. तो इन होलोक्राइन सेल्स के नीचे ना हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं जो कि बाद में डिवाइड करते हैं एंड दे विल रिप्लेस द डिजेनरेटेड सेल्स, एंड इसका एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड. ओके, सी हियर, द नॉर्मल सेल, the complete cell is getting disintegrated. See, this is a very good picture here. तो सबसे पहले try to identify this. You can see here cytoplasmic secretory process products हैं हम यहाँ पे, और ये हमारे पास ऐसे exocytosis से they are pouring their secretion into the duct and then from duct वो बाहर आ जाएगा. Here you see the apical part. The apical part is getting detached, the pinched off portion of the secretion, and then they are getting into the duct and then coming outside. So apocrine. And here the cell is getting disintegrated, but here you can see a different cell in the base. This cell is what? This is the stem cell which is going to replace this disintegrated cell. And then the complete cell will give off the secretion coming to the duct and going outside. This is the holocrine gland. So now you can understand here. देखो पूरा का पूरा जो सेल है ना, सेल सिक्रीशन देने के साथ साथ डिसइंटीग्रेट करके बाहर चला गया. दिस इज होलोक्राइन. मेरोक्राइन में यू कैन सी दिस इज द साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स है हमारे पास, बहुत सारे inclusion bodies, and these inclusion bodies are coming at the surface and moving the secretion out. And here the apocrine, see the apex is completely getting pinched off here. See, है ना? तो same, तो आप माहिर हो गए होगे. So this was the last slide in the glands, and I hope कि glands आपको समझ में आया हो. And this is a very complex topic due to its classification. तो आप जितनी बार हो सके इसको रिवाइज करो. And thank you for not getting distracted until the end, and thank you for listening to me. This is Priya Gupta signing off.